started our chapter 2 methods of inquiry in psychology in previous class. We have talked about some topics of this chapter as goals of psychological inquiry, steps in conducting scientific research. The goals of psychological research are description, prediction, explanation, control and application. While the steps in conducting scientific research are conceptualization a problem, collecting data, drawing conclusions, revising research conclusions, and today we will discuss about some other topics. So the next topic is nature of psychological data. You may want to consider how psychological data are different as compared to other sciences. Psychologists collect a variety of information from different sources employing diverse methods. The information, also called data, singular, datum, and relate to the individual's covert or overt behavior. Their subjective experiences and mental processes data form an important input in psychological inquiry. They, in fact, approximate the reality to some extent and provide an opportunity to verify or falsify our ideas, hunches, notions, etc. It should be understood that data are not independent entities. They are located in a context and are tied to the methods and theories that govern the process of data collection. In other words, data are not independent of the physical or social context. It means जैसे कि हम लोगों ने अभी पिछली वीडियोस में डिस्कस किया था अबाउट द वेरियस स्टेप्स ऑफ इन कंडक्टिंग साइंटिफिक रिसर्च, और जिसमें हमने डाटा के बारे में बात की थी कि हम लोगों का जो स्टेप होता है उसमें पहले तो हम कंसेप्चुलाइजेशन करते हैं किसका, प्रॉब्लम का, उसके बाद डाटा होता है. सो कलेक्शन ऑफ डाटा में एक्चुअली डाटा क्या चीज़ है हम उसके बारे में बात करेंगे. वैसे तो डाटा अगर काफ़ी सारा हो तो हम उसे डाटा बोलते हैं, बट अगर हमारे पास सिंगल रिकॉर्ड है तो हम उसे क्या बोलेंगे, डेटम. अब ये डाटा होता है क्या, डाटा के कुछ फीचर्स होते हैं. डाटा मीन जो हम कलेक्ट करते हैं दूसरे लोगों के बिहेवियर को ऑब्जर्व करके, या हम उनके बिहेवियर में कुछ नोटिस करते हैं तो हम उसे लिख लेते हैं, नोट कर लेते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डाटा. जैसे साइकोलॉजिस्ट का वर्क होता है कि बिहेवियर को स्टडी करना, तो उस बिहेवियर को जब हम स्टडी कर रहे होते हैं तो सबसे पहले हम नोट करते हैं कि बिहेवियर कब हो रहा है, कैसे हो रहा है, उसका क्या रीज़न है, किस जगह पर हो रहा है और कितनी बार रिपीट हो रहा है. तो इन सारी चीज़ों को हम क्या बोलते हैं, डाटा. सो डाटा कोई सिंगल एंटिटी नहीं होती. जनरली डाटा, डेटम कभी नहीं होता. एक सिंगल डेटम से हम लोग अपने रिजल्ट्स नहीं निकाल सकते, एनालिसिस नहीं कर सकते. इंक्वायरी कंप्लीट अगर हम चाहते हैं कि सही तरीके से हो तो उसके लिए हमें काफ़ी सारा डाटा चाहिए होता है. सो देयर आर सम फीचर्स ऑफ डाटा लाइक data are not independent of the physical or social context. It means data कभी without any context नहीं होता. इसका कोई फिजिकल या सोशल कंटेक्स्ट ज़रूर होता है. फिजिकल कंटेक्स्ट मीन कि वो किसी एक पर्सन का डाटा है, वो किसी एक जगह पर हुआ है तो वो किसी के कंटेक्स्ट में लिया गया है कि ये किसी पर्सन का डाटा है, तो उसके लिए हम बोलेंगे फिजिकल डाटा. अब ये डाटा किस जगह पर लिया गया है और किन लोगों के बीच में लिया गया है, तो वो क्या कहलाएगा, सोशल कंटेक्स्ट में आ जाएगा वो जो डाटा है. सोशल कंटेक्स्ट इसलिए क्योंकि हम लोग हमेशा ही किसी ना किसी के पास होते हैं, बिकॉज वी आर सोशल ह्यूमन बींग्स. तो जब भी किसी को ऑब्जर्व किया जाता है, उसका डाटा कलेक्ट किया जाता है, तो वो किसी न किसी तरह से सोसाइटी के पास होगा. तो डाटा का या तो फिजिकल कंटेक्स्ट होगा या फिर सोशल कंटेक्स्ट. अब जो आपका सेकंड फीचर है डाटा का, वो दैट इज डाटा इज नॉट सेम एवरीवेयर. The persons involved and the time when the behavior occurs, we behave differently when alone than in a group or at home and in office. You may
Hesitate to talk in front of your parents and teachers, but not when you are with friends. You may have also noticed that not all people behave in exactly the same manner in the same situation. The method of data collection, survey, interview, experiment, etc., used and the characteristics of respondents, such as individual or group, young or old, male or female, rural or urban, etc., also influence the nature and quality of data. It is possible that when you interview a student, he or she may report behaving in a particular manner in a given situation. But when you go for actual observation, you may find just the opposite of what she or he had reported. इट मीन्स आपको डाटा हर जगह सेम नहीं मिलेगा, चाहे पर्सन सेम है, पर्सनैलिटी सेम है, लेकिन पर्सनैलिटी भी हर जगह अलग अलग बिहेव करेगी. फॉर एग्जांपल, आप एक स्टूडेंट का एग्जांपल ले लीजिए. एक स्टूडेंट अपने पीयर ग्रुप के सामने अलग बिहेव करेगा, टीचर्स के सामने अलग बिहेव करेगा और फ्रेंड्स के सामने अलग बिहेव करेगा. यही चीज़ हम लोगों के खुद के ऊपर भी अप्लाई होती है. जब हम लोग अपने बॉस के सामने होते हैं, अपने किसी एडमिनिस्ट्रेटर के सामने होते हैं, तो वहाँ पर जो हमारा बिहेवियर है वो चेंज हो जाता है. बट जब हम अपने कलीग्स के साथ होते हैं, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ होते हैं, तो वहाँ पर हमारा क्या होता है, बिहेवियर चेंज हो जाता है. तो वहाँ पे पर्सनैलिटी तो एक है, पर्सन एक है, बट सिचुएशन के अकॉर्डिंग और पर्सन टू पर्सन हमारा बिहेवियर वेरी करता है. अब अगर हम एक जगह से डेटा लेकर आ जाएं कि ये इस पर्सन का बिहेवियर है एंड इट विल बी रिमेन सेम इन एवरी सिचुएशन, देन वी आर रॉन्ग हेयर. बिकॉज हमें डाटा हर कंटेक्स्ट में लेना पड़ेगा, इन फ्रंट ऑफ फ्रेंड्स, इन फ्रंट ऑफ पेरेंट्स एंड इन फ्रंट ऑफ टीचर्स ऑल्सो, मे बी अकेले में भी. तो हमें हर कॉन्टेक्स्ट में डेटा कलेक्ट करना ज़रूरी है, क्योंकि डाटा जो हम कलेक्ट कर रहे हैं उसके बिहेवियर का वो हर जगह सेम नहीं है. सिचुएशन के अकॉर्डिंग एक ही पर्सन अलग अलग बिहेवियर करता है. सपोज़ कि एक पर्सन है, तो वो जब वर्किंग प्लेस पर जाता है तो वहाँ पर बहुत मैनेज तरीके से रहता है, शांत रहता है, पोलाइट वे में बात करता है. तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि वो बड़ा ही जो पर्सन है बड़ा ही पोलाइट है, बिकॉज क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि वो घर पर जाकर सेम मैनर में बिहेव ना करे. तो वहाँ पर ज़रूरी है कि उस पर्सन की नेचर को डिफाइन करने के लिए उसके घर पर जाकर उसके फ्रेंड सर्कल में भी हम उसके बिहेवियर को, उसकी नेचर को ऑब्जर्व करें. आफ्टर दैट हम ये प्रूव करें कि उस पर्सन का नेचर पोलाइट है या नहीं है. अनदर इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ डाटा इज दैट इट डज नॉट in itself speak about reality. Interferences have to be made from data. A researcher attaches meaning to the data by placing it in its proper context. जितना भी डाटा आप कलेक्ट कर रहे हो उसका आप केवल रटकर एक रिजल्ट नहीं निकाल सकते, या फिर वो डाटा अपना कोई रिजल्ट खुद से नहीं बता सकता. आपको उसको एक स्टैटिस्टिकल मेथड यूज़ करके एनालाइज करके उसका एक मीनिंग निकालना होता है, उसका कोई एक रिजल्ट निकालना होता है, तभी उस डाटा का मीनिंग निकलेगा. अगर मैं ऐसे ही किसी को नोटिस करके ऐसे ही लिख दूँ एक जगह कि इस पर्सन का ये बिहेवियर हर बार शो होता है जब ये इन लोगों के साथ होता है, अब अगर हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे डाटा कलेक्ट करके, देन देयर इज़ नो मीनिंग ऑफ दैट डाटा कलेक्शन. जब तक आप उसका कंक्लूज़न निकाल कर एक थ्योरी नहीं बना लेते, तब तक इंटरप्रेट नहीं कर सकते कि इन सिचुएशंस की वजह से इस तरह का बिहेवियर होता है. इस तरह से एक थ्योरी क्रिएट नहीं करते डाटा की, जब तक कि हम उस डाटा का कोई यूज़ नहीं है. डाटा को इंटरप्रेट करना बहुत ज़रूरी है, उस डाटा का कुछ यूज़ करना बहुत ज़रूरी है आगे का बिहेवियर लोगों का जानने के लिए. ये बहुत ज़रूरी है कि जो डाटा हमने कलेक्ट किया है उसको इंटरप्रेट किया जाए स्टैटिस्टिकल वे में. कई बार ऐसा होता है कि जिस मेथड से आप डाटा कलेक्ट कर रहे होते हैं उस मेथड पर भी डिपेंड करता है कि आपका डाटा कैसा आया है, रॉन्ग है, कंप्लीट है, इनकम्प्लीट है या फिर सही है. लाइक आप किसी स्टूडेंट का इंटरव्यू लो और आप उससे ये बोलें कि आप उसका इंटरव्यू ले रहे हो उसका बिहेवियर नोट करने के लिए, तो क्या आपको लगता है कि वो इंटरव्यू में कुछ नेगेटिव बोलेगा? नहीं, अपने बारे में तो कोई भी नेगेटिव नहीं बोलेगा.
या कभी आप किसी से कहें कि आप अपने बारे में बताइए, अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बताइए, तो क्या वो अपनी लाइफ की सारी पर्सनल बातें आपसे शेयर करेगा? तो आपको जो डाटा मिलेगा वो थोड़ा सा सुपरफिशियस मिलेगा, इतना ज़्यादा डेप्थ में नहीं मिलेगा, उसकी डिटेल नहीं पता चल सकेगी। लेकिन अगर आप उसका नेचुरली ऑब्जर्व करोगे बिहेवियर फ्रेंड्स के बीच में, यहाँ उसे नहीं पता है कि आप उसे ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो उसे नेचुरल कंडीशन में ऑब्जर्व करने पर जो डाटा मिलेगा वो टोटली अलग होगा। सो ये तो हो गए आपके डाटा के फीचर्स। नाउ वी विल टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ डाटा, कि किस तरह के डाटा लेने होते हैं। इसमें बहुत अलग अलग तरह के टाइप्स हैं। जब हम दूसरों से डाटा लेते हैं तो उसमें क्या क्या डाटा हम लेते हैं। सो फर्स्टली वी विल टॉक अबाउट डेमोग्राफिक डाटा. Demographic information. This information generally includes personal information like name, age, gender, birth order, number of siblings, education, occupation, marital status, number of children, locality of residence, caste, religion, parental, education, occupation and family income etc. ये जो डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन है, जैसे हम कहीं पर अगर अपना बायोडाटा देते हैं तो उसमें ये सारी इंफॉर्मेशन हम इंक्लूड करते हैं। इन द सेम मैनर हम जब डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन किसी से लेते हैं तो उसका नेम आ जाएगा, उसमें उसकी क्या एज है, उसका जेंडर क्या है, बर्थ ऑर्डर आ जाएगा, उसका नंबर ऑफ सिबलिंग्स आ जाएंगे, उसका एजुकेशन क्या है, मतलब उसकी जो क्वालिफिकेशन है वो क्या है, किस प्रोफेशन में है वो, मैरिटल स्टेटस वो मैरिड है या अनमैरिड है, या फिर नंबर ऑफ़ चिल्ड्रेन उसके कितने चिल्ड्रेन हैं, वो सारी चीज़ें आ जाएंगी। लोकेलिटी ऑफ रेजिडेंस, कहाँ पर रहता है वो, उसका रेजिडेंस कहाँ पर है, उसकी कास्ट क्या है, उसका रिलीजन क्या है, पेरेंटल एजुकेशन मीन्स उसके पेरेंट्स की एजुकेशन, ऑक्यूपेशन एंड फैमिली इनकम एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी किसमें, डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन में। The second is physical information. This category includes information about ecological conditions like hilly, desert, forest, mode of economy, housing conditions, size of rooms, facilities available at home, in the neighborhood, in the school, mode of transportation, etc. जो फिज़िकल इंफॉर्मेशन होती है उसमें आपकी क्या आ जाती है, इकोलॉजिकल कंडीशंस, लाइक आप हिली एरिया में रहते हो, डेजर्ट एरिया में रहते हो या फिर फॉरेस्ट में रहते हो, ठीक है। मोड ऑफ इकोनॉमी, आपका जो इकोनॉमी है वो कहाँ से आपको मिल रही है, किस तरह से आप अपना जो लाइवलीहुड है वो किस तरह से गेन कर रहे हैं। तो हाउसिंग कंडीशंस, आपकी जो हाउस है वो कहाँ पर है, किस कंडीशन में है, साइज ऑफ रूम्स, उसका कितना बड़ा है वो घर, ठीक है, और जो रूम्स हैं उनका साइज़ क्या है, फैसिलिटीज़ अवेलेबल एट होम, क्या क्या फैसिलिटीज़ आपके रूम में होम के अंदर हैं, इन द नेबरहुड, इन द स्कूल, मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एक्सेट्रा। फिजियोलॉजिकल डाटा, इन सम स्टडीज़ फिजियोलॉजिकल एंड psychological data are collected about height, weight, heart rate, level of fatigue, galvanic skin resistance mean GSR, electrical activity of the brain measured by electroencephalograph, blood oxygen levels, reaction time, duration of sleep, blood pressure, pattern of dream, amount of salivation, running and jumping rates, ओके। तो ये जो आपका फिजियोलॉजिकल डाटा है इसमें आपके बॉडी से रिलेटेड, आपके ब्रेन से रिलेटेड साइकोलॉजिकल डाटा भी है इसमें, क्योंकि तो ये सारी चीज़ें कलेक्ट की जाती हैं। जैसे कि आपका हाइट हो गया, हाइट क्या है आपकी, वेट क्या है, हार्ट रेट कितना है आपका, लेवल ऑफ फटीग क्या है, मीन आप कितनी देर में थकते हैं, कितनी चीज़ों को करने के बाद थकते हैं, ये होता है आपका लेवल ऑफ फटीग। और GSR भी आपका मेज़र किया जाता है, आपकी ECG भी की जाती है, और आपका जो है ब्लड प्रेशर भी इसमें मेज़र किया जाता है, उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है। साइकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन कलेक्टेड में रिलेट टू सच areas as intelligence, personality, interest, values, creativity, emotions, motivation, psychological disorders, illusions, delusion, hallucination,
perceptual judgment, thought processes, and consciousness, subjective experiences, etc. The above information could be from the point of view of measurement somewhat crude, like in the form of categories such as high, low, yes, no, ranks which provide ordinal data, that is first, second, third, fourth, etc., or scores like 10, 12, 15, 18, 20, etc. on scales. We also obtain verbal reports, observation records, personal diaries, field notes, archival data, etc. Such types of information is analyzed separately using qualitative methods. फॉर्म्स ऑफ डाटा में जो आप डाटा कलेक्ट कर रहे हो, आप लोगों से पूछ रहे हो, उनसे क्वेश्चनर फिल करा रहे हो, लिखवा रहे हो, या आप खुद भी लिख रहे हो, तो कितने अलग अलग फॉर्म्स होते हैं, कितने तरीके से हमें डेटा मिलता है. सो फर्स्ट टाइप ऑफ फॉर्म इज कैटेगरीज. कैटेगरीज में लाइक यस और नो की फॉर्म में, जैसे आपने क्वेश्चन पूछा है और कोई और आपने आंसर के लिए दो ही ऑप्शन दिए हुए हैं, यस और नो, और जिस पर्सन से आप डाटा कलेक्ट कर रहे हो या जिससे हम क्वेश्चन कर रहे हैं उसे ओनली यस और नो में रिप्लाई करना है, या फिर हाई और लो में आंसर करना है. आप उनसे पूछ रहे हो स्ट्रेस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन कि आप जब ऑफिस जाते हो तो आपका स्ट्रेस हाई होता है या लो होता है, तो उनको दो ही ऑप्शन आपने दिए हैं. तो जहाँ पर आपने ओनली 2 ऑप्शन दिए हैं उनमें से एक चूज करना है, तो वो किस में आता है, आपका कैटेगरी में आता है. या तो वो पॉजिटिव कैटेगरी में आएगा या फिर वो नेगेटिव कैटेगरी में आएगा. एक फॉर्म होती है आपकी रैंक के अकॉर्डिंग. इसमें आपने ऑप्शंस में रैंक दिए होते हैं कि रैंक के अकॉर्डिंग उनको टिक करो. जैसे किसी ने उसका डेमोग्राफिक डाटा पूछ लिया कि आपने अपनी सिबलिंग्स में कितने नंबर पर आते हैं, देन वो टिक करेगा फर्स्ट, सेकंड या थर्ड, जिस भी रैंक पर वो आता है. तो रैंक बताई है उसने. डाटा स्कोर्स की फॉर्म में हो सकता है, मीन डेटा नॉर्मल नंबर्स में हो सकता है, लाइक 10, 20, 30. जैसे आप किसी से पूछते हो कि यहाँ कितने लोग काम करते हैं, हाउ मैनी मेंबर्स आर देयर इन योर फैमिली, तो आपको नंबर्स में बताएगा इसका आंसर. वो जो भी है वो नंबर है, उसको हम क्या बोलेंगे, स्कोर्स बोलेंगे. अब ये जो फॉर्म्स जो अभी अभी हमने डिस्कस की, उनमें जो भी डाटा हमने कलेक्ट किया वो कैसे करती हैं, हम दूसरों से पूछ कर करते हैं, दूसरों से उसका आंसर लेते हैं, तब हम उसको नोट करते हैं. बट समटाइम्स वी कलेक्ट डाटा ourselves. वी ऑल्सो ऑब्टेन ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड्स. हम किसी को ऑब्जर्व करके भी डाटा कलेक्ट कर सकते हैं. पर्सनल डायरीज़ को पढ़कर भी हम डाटा कलेक्ट कर सकते हैं. या फिर फील्ड नोट्स. आप फील्ड में खड़े हो, आप अपने आप आसपास की सब चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हो, आपके आसपास जो भी हो रहा है उसको नोट कर रहे हो, तो वो होता है आपका फील्ड नोट्स. अब आपका आता है वर्बल रिकॉर्ड्स. वर्बल रिकॉर्ड्स मीन्स आपने किसी से इंटरव्यू लिया और उसने जो बोला उसे नोट कर लिया, उस टाइम पर आप लिखेंगे वो डाटा, वो पर्सन नहीं. बेसिकली इसमें ये ध्यान रखना है कि जो भी डाटा कलेक्ट कर रहा है उसको ये पता होता है कि उसने फोकस कहाँ करना है, उसको किस बिहेवियर के ऊपर फोकस करना है और कौन सा डाटा ज़्यादा रिकॉर्ड करना है. सपोज आप किसी पर्सन की एंजाइटी लेवल को मेज़र करना चाहते हैं, तो जो डाटा आपको कलेक्ट करना है वो किससे रिलेटेड होगा, उसके बिहेवियर से. और बिहेवियर भी अलग अलग पैराडाइम्स में ऑब्जर्व करेंगे, उन सारी सिचुएशंस को रिकॉर्ड करेंगे जिनमें वो पर्सन एंजाइटी फील करता है, एंड एनालिसिस करेंगे उन सिचुएशंस का भी जिनमें वो पर्सन एंजाइटी फील नहीं करता. हम उसके वर्किंग प्लेस की कंडीशंस, उसका फैमिली बैकग्राउंड, उसकी इकोनॉमिक कंडीशंस, इन सब से रिलेटेड डाटा कलेक्ट करेंगे, बिकॉज यही वो पॉसिबल कंडीशंस हैं जो कहीं ना कहीं स्ट्रेस जनरेट करती हैं. So, okay students, in the next video we will discuss some other topics of this chapter, methods of inquiry in psychology. Till now we have discussed so many topics of this chapter, and if you are getting problems related to those topics, then we will discuss in Google Meet class. Okay.